हे गाइस, वेलकम बैक टू आर परफॉर्मेंस स्टोर। आज हमारे पास मर्सिडीज़ की GLE 300D आई हुई है। इसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, मेजर इन द सेंस जिस दो पैनल्स पे ही है, बट डोर इज़ क्वाइट मेजरली डैमेज एंड क्लाइंट डिड नॉट वांट टू use his policy claim, insurance claim, so this he is going to do it with his own self money. ये खुद के खर्चे पे ही वो कर रहे हैं। As you can see here, डोर के लाइनिंग पूरे डैमेज हो चुके हैं। जो उसका एक फॉर्मा होता है वही डैमेज हो चुका है। द कर्व इज़ गॉन इनसाइड, देयर आर गुड डेंट्स हियर एज वेल, एंड यहाँ पे फेंडर पे भी डैमेज हुआ है। इन दिस पर्टिकुलर कार we are going to do the denting work of this door panel, the fender panel, and we'll be painting both the fender as well as the fender as well as the door. We'll show you through the entire process of how it is done. प्रीमियम गाड़ियों का कैसे डेंटिंग होता है यूजिंग द डेंट पुलर, जो हमारे डेंटर है पाजी वो करेंगे, तो वो आप देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट हाउ पुट्टी वर्क इज़ डन, पेंटिंग का काम किया जाता है, ये सब विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। ऑल्सो एट द एंड विल टेल यू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डज इट कॉस्ट to paint a premium vehicle, usually using DuPont paint, which is the recommended paint for all these bigger brands. तो उसके साथ में when you use that material and with the labor work, how much should it on an average cost you for a good pristine job? So let's go ahead, stay tuned. There are a lot of other scratches also, by the way, on the other side of the car, but the client has asked us not to do that. He's just asked us to brush touch it up. So the major panels that are going to be covered are the door and the fender. Stay tuned, look forward to it. So now we are starting the work on the vehicle. Before starting the work, you will notice that we put on this plastic film over the seats so that it does not get soiled over. वो गंदा ना हो जाए। ये इसके बीच इंटीरियर्स है तो वो काफ़ी delicate है, so we did not want it to get soiled or get dirty when we are working on it. So first and foremost, we are removing all the panels, the interior panels. Interior panel के बाद हम लोग ने इसका ग्लास भी उतार दिया है, because after looking at the dent and discussing it with our denter जो सोनू पाजी है, उनके साथ डिस्कस करने के बाद we decided okay, first we'll complete the denting process by hand. हाथ से उसका जितना शेप हम लोग रिकवर कर सकते हैं वो करेंगे, एंड उसके बाद में we'll move on to the dent puller machine. So in this particular case, since the door is going to be removed outside, we have not dismantled the battery or anything of that sort. But yeah, अभी इस पे we are covering the denting process with hand itself, फाइल के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। एंड ये एक होने के बाद में we'll take out the door and then continue on to the final finishing of the denting process. Now we are taking down the door. We've already taken down the door to start denting process using the dent puller. So first and foremost we are taking out the paint. जो उसका पेंट होता है डेंट पुलर यूज़ करने के लिए ग्राइंडर के मदद से उसका पेंट पूरा हम लोग निकालते हैं, देन ओनली द डेंट पुलर विल वर्क ऑन इट. सो डेंट पुलर अभी ग्राइंडर से पूरा का पूरा पेंट निकालने के बाद में विल ट्राई एंड गेट इट स्टेडी. अभी हाथ से जितना डेंटिंग होना था वो तो हो चुका, बट उसको जो परफेक्शन हमको अचीव करना था वो करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ द डेंट पुलर राइट नाउ. So you will see that with the dent puller it becomes really easy to work on and to achieve that final perfection. And now after it's completed, we are going to mount the door back onto the vehicle.
सारा फिटिंग अंदर का भी हम लोग कर देंगे, ग्लास हो गया, इंटीरियर का जो भी फिटिंग है वो भी कर देंगे, एक्सेप्ट फॉर द मिरर, बिकॉज मिरर बिकम्स अ बिट विद द मिरर बीइंग इन प्लेस इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट ड्यूरिंग द पेंटिंग प्रोसेस. सो मिरर खाली हम लोग असेंबल नहीं करेंगे, उसके अलावा सारा चीज़ें असेंबल करके विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. So after the process of denting, we are moving on to the sanding and the base work. यहाँ पे पहला तो जितना पोर्शन डेंटिंग किया गया है उतने पीस को हम लोग 80 ग्रिट पेपर से सैंड किया जाता है. 80 ग्रिट एंड 180 ग्रिट से. सो 80 ग्रिट इज बेसिकली टू मेक द सरफेस इवनली रफन्ड आउट, जिसके ऊपर पुट्टी बैठ सके. देखो कोई भी चीज़ जो होती है उसको अगर हम लोग पेस्ट करना चाहिए या स्प्रे करना चाहिए, द सर्फेस हैज़ टू बी रफ फॉर इट टू गेट अडियर्ड इन टू द सर्फेस. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी ऑलवेज सैंड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पुट्टी. यहाँ पे अभी पूरा का पूरा मेटल के ऊपर जितना भी डेंटेड पोर्शन है और उसके थोड़ा सा अक्रॉस वाला पार्ट पीसेस पे हम लोग जब भी सैंडिंग ख़त्म करते हैं उसके बाद में वी स्टार्ट फिलिंग अप द पुट्टी. ऑल्सो ऑलवेज कीप इन माइंड इट्स ऑलवेज गुड टू यूज़ प्रॉपर पुट्टी. और पुट्टी जस्ट पुट्टी यूज़ करके मतलब नहीं होता. योर पेंटर हैज़ टू नो द क्वान्टिटी ऑफ हार्डनर दैट इज सपोज टू बी मिक्सड विद इट. इन केस वो हार्डनर का रेशियो प्रॉपर नहीं रहा तो पुट्टी क्रैकनिंग, पुट्टी बबलिंग अप, ये सब इश्यूज आफ्टर पेंट जॉब 6 या 8 महीने के बाद आ सकता है. सो इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि पुट्टी के साथ में कितना क्या उसका हार्डनर और पुट्टी का जो रेशियो है दैट द पेंटर हैज़ टू बी अवेयर ऑफ एंड ही नीड्स टू नो हाउ टू मिक्स इट प्रॉपरली. So after the putty is applied, we move on again to the sanding part. तो पुट्टी जितना रहता है इट्स यूजुअली जब भी फिलअप किया जाता है तो वो हाई एंड लो रहता है, तो वो चीज़ को प्रॉपरली सैंडिंग वगैरह करके उसको लेवल अप किया जाता है. एक बार वो लेवल अप होने के बाद में इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन हाथ घुमा घुमा के बाय द फील ऑफ द हैंड वी अंडरस्टैंड वेदर देर आर एनी हाइज एंड लोज इन द पैनल. And once it comes to a very bare minimum high and low, so that time we tend to use a dry coat जो हम अभी आपको दिखाएंगे. यहाँ पे you can see that we are using dry coat. So dry coat is nothing but a black powder. It's a charcoalish type black powder जो हम लोग पुट्टी वगैरह काम होने के बाद में फाइनल फिनिशिंग वर्क के लिए यूज़ करते हैं. सो आफ्टर वी अप्लाई द ड्राई कोट, जब भी आप सैंड करते हो तो कहाँ पे भी अगर खड्डा होगा तो वो खड्डे में आपको ब्लैक दिख जाएगा. सो यूल नो दैट यू नीड टू अप्लाई मोर पुट्टी हियर. और अगर जो ज़्यादा सैंड ऑफ हो गया एंड देयर इज़ अ हाई जो हाथ के फील से भी नहीं समझता है तो वो बारीकी से आपको इस चीज़ में समझ में आ जाएगा बाय यूजिंग अ ड्राई कोट. ड्राई कोट इज़ यूजुअली यूज्ड इज़ टेक्निकली सपोज टू यूज on every panel wherein you want perfection. Now this being a premium vehicle, we, or for that sake any other vehicle also, we try and use it so that we attain the maximum finish in our paint job. Now after completion of the sanding process we move on to the primer spraying. यहाँ पे we are using 2K base primer. There are two types of primer, one is 2K base, one is 1K base. 1K बेस में हार्डनर वगैरह मिक्स नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली सॉल्वेंट जो आपका थिनर होता है वो डाल के स्प्रे मारा जाता है, बट उसका एडिशन प्रॉपर्टीज आर नॉट दैट ग्रेट. दो 1K इज ऑल्सो रियली गुड फॉर डूइंग टचअप वर्क, बट देन whenever if you want to get a pristine result onto your vehicle, it's always better to use 2K primer. Lot of people painters don't use 1K primer, 2K primer. The reason being 2K primer becomes a bit expensive. तो यहाँ पे टू अटेन द मैक्सिमम गुड रिजल्ट वी आर यूजिंग 2K primer. एंड सिंस दिस इज अ स्पॉट रिपेयर वी आर नॉट गोइंग टू डू द एंटायर पैनल्स, वी आर जस्ट डूइंग द स्पॉट जहाँ पे हमने किया हुआ है वहाँ पे हम लोग प्राइमर मार के उसको बाद में हल्का सा सैंडिंग करके वील मूव ऑन टू द पेंटिंग प्रोसेस. आफ्टर प्राइमर वी आर वॉशिंग द व्हीकल. वी ऑलवेज प्रैक्टिस, हमारा एक हैबिट है हमारे वर्कशॉप पे, दैट बिफोर टेकिंग द व्हीकल इनसाइड द पेंट बूथ वी ऑलवेज वॉश इट सो दैट जो भी डर्ट है, टायर के ऊपर का लगा हुआ मट्टी है, वो सब पेंट बूथ में ना जाए. वी ट्राई टू रिड्यूस द कंटेमिनेशन इनसाइड द पेंट बूथ एज मच एज पॉसिबल. सो आफ्टर द वॉशिंग द कार गोज इनसाइड द पेंट बूथ. And now we are starting with the process of masking as well. यहाँ पे we are using an OPS sheet, to cover the entire car except for the panels जो पेंट होना है, उसके अलावा सारा गाड़ी मास्किंग किया जाता है. So we are using Norton का OPS sheet and Würth का masking paper as you can see here.
And yeah, after the entire masking is done, we'll move on to the painting process. आफ्टर द मास्किंग इज डन, डिग्रीजर अप्लाई किया जाता है टू रिमूव द माइन्यूटेस्ट ऑफ कंटेमिनेशन. अभी क्या होता है वर्कशॉप में, जब भी हम काम करते हैं तो ऑयल का हाथ लग जाता है, कोई दूसरे गाड़ी का हाथ लग जाता है, और वही हाथ हम अगर आके लगा देते हैं ड्यूरिंग मास्किंग, तो ऑब्वियसली दैट कंटेमिनेशन इज गोइंग टू थ्रो ऑफ आफ्टर द पेंटिंग वर्क इज डन. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डीकंटेमिनेटेड. सो उसके लिए हम डिग्रीजर से पूरा क्लीन कर लेते हैं. एंड वी हैव स्टार्टेड विद द पेंटिंग प्रोसेस नाउ. पेंटिंग के लिए फर्स्ट इट्स ऑल ड्राई हैंड. पहले 2-3 बार ड्राई हैंड मारने के बाद ही फाइनल कोट अप्लाई किया जाता है. नाउ माइंड यू, दिस पर्टिकुलर कलर दैट इज देयर, इट्स अ डार्क ब्लू कलर which gives less amount of covering. अभी जब भी मैं कवरिंग का बात करता हूँ, कवरिंग इज़ बेसिकली यूजुअली हमारे पेंटर्स या वर्कशॉप लाइन में कवरिंग वर्ड इज़ यूज्ड वेर इन, से सपोज यूजुअली अ कार का एक डोर पैनल पेंट करने के लिए 100 ml कलर लगता है या 150 ml कलर लगता है. जो कलर्स, ये ब्राइटर कलर्स जो होते हैं, डार्कर कलर्स या जो पर्ल्स में रिच होते हैं, वो कलर्स में द क्वांटिटी ऑफ कलर दैट इज रिक्वायर्ड इज मोर. तो उसके लिए कवरिंग कम रहता है. सो ये वाला जो पैनल रहेगा, ये यूजुअली अदर कार्स जिसमें 150 ml में कवर अप हो जाएगा, वो ये पैनल्स में, ये कलर्स में इट विल टेक अराउंड 200-250 ml एंड ऑल दैट. यहाँ पे अभी पेंट होने के बाद में वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग द लैकर विच इज़ द क्लियर कोट. Here in this particular car we are using Cromax का DuPont which is premium standard OEM recommended clear coat. एंड द रिजल्ट्स आर रियली अमेजिंग. और इसका जो लाइफ भी है, ये अच्छे तरीके से अगर पेंट किया जाए तो ये आराम से आपको 8 से 10 साल का लाइफ भी दे सकता है. अभी गाड़ी जो है पेंट बूथ से बाहर आ चुका है. एंड आफ्टर इट्स कम्प्लीटली हील्ड ऑफ, वी मूव्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सैंडिंग. दिस इज़ आफ्टर पेंटिंग के दौरान कुछ इम्प्योरिटीज़, कितना भी प्रिकॉशन लेंगे तो भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ वगैरह बैठ ही जाता है क्लियर कोट में. एंड जो ऑरेंज पील होता है वो भी क्लियर आउट करने के लिए वील सैंड द एंटायर पैनल्स डाउन. जो दोनों पेंट किए हुए पैनल्स है उसको सैंड करके उसको अच्छे से क्लियर आउट करके फिर उसके बाद वील मूव ऑन टू द रबिंग. एंड रबिंग होने के बाद में आफ्टर द व्हीकल इज वॉश्ड वील मूव ऑन टू द पॉलिशिंग पार्ट. सो दिस प्रीटी मच सम्स अप द एंटायर वर्क प्रोसेस. और असेंबली वगैरह जो बाकी है वो सब करके द व्हीकल शुड बी रेडी टू गो. नाउ वी आर स्कैनिंग दिस मर्सिडीज़, क्योंकि हमने डोर वगैरह सब खोला था, इसका डोर पैनल्स खोले थे, इसका बैटरी छुड़ाया था फॉर डेंटिंग पर्पस. सो देयर इज़ ऑलवेज दिस एरर दैट विल स्टे इन, जो उसके मेमोरी में रह जाता है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्कैन इट एंड डिलीट ऑल दोज एरर्स एंड वील बी गुड टू गो. आफ्टर दिस वील जस्ट वॉश द कार एंड वील हैव इट रेडी फॉर डिलीवरी. सो द टूल दैट वी आर यूजिंग हियर इज Texa. It's an Italian-made diagnostic tool company, and this helps us in scanning all the premium vehicles, whether it's a Rolls-Royce or it's a Mercedes or a Bentley, whatever it is, वो सारा का सारा हम कर सकते हैं इसके साथ में. So like you can see here, यहाँ पे ये सब आया है. We'll just delete it off, and we are good to go.
Hi guys, so गाड़ी ये complete हो चुका है. Like you can see here, the door was dented as you saw earlier. उसके बाद पेंटिंग वगैरह भी अच्छे से हो चुका है. कलर इज 100% मैच एंड एवरीथिंग लुक्स एज इफ कुछ हुआ ही नहीं था. एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो देर आर नो डस्ट और वट एवर इट इज़ इन द panels. And yeah, it's all in all it's a good job done. Again, just to say guys, if you want color for your vehicle, any vehicle that you own, and you want to do a brush touch up, you want to do probably paint the panel, and you are not sure what your painter is going to use. If you want genuine material, you can call us on the given number below in the description, and you can send us you can WhatsApp us your vehicle number, your RC book number, and you can tell us what is the quantity that you required, whether it's 50 ml, 100 ml, a liter, whatever it is. If you want a full paint job also to be done for your car or for your motorcycle, you can let us know, and we'll ship it to you with whatever the things are, and we can coordinate, and we can guide you through how you can purchase it from us. And also in this I would like to tell you how to understand how to know what is the paint code of your vehicle. One is your RC book, उधर लिखा हुआ रहता है, but most of the vehicles में RC book में the paint code is written in probably smaller abbreviations and all that, so you won't understand कि वो exactly क्या है. Just to know, in this Mercedes, it's on the passenger side, there will be a sticker there, and you will see that. Yeah, sorry, it's not the passenger side, it's on the door side itself. Abhi isme you can see here, come closer, I'll show you. So this is the VIN plate number, the sticker that is given. Here you can see this number here, 890. This is the paint code for this particular vehicle. Okay, so in Mercedes it's like this. Henceforth के आगे के videos में we'll keep on showing you in different vehicles paint code कहाँ पे आता है. For an example, your Skodas and all, it will have it in their boot compartment under where your spare wheel is. Your Volkswagens will have it there. There will be a sticker there. In your Hyundai models, you will again find a sticker like this, either on the passenger or the driver door side. Or else there will be a sticker on the quarter panel window here, the smaller window here. And in that you can see, but usually Hyundai में that sticker fades off, but you can always find out. We'll keep on telling you about it, and we'll educate you about it. Okay, chalo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break